Hello everyone. Now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the topic that is evaluation of school experiences and internship, that means evaluation of internship program. अर्थात मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ विद्यालय के अनुभव यानी उनका मूल्यांकन, विद्यालय के अनुभव का मूल्यांकन और साथ ही साथ इंटर्नशिप का मूल्यांकन के बारे में. यह पार्टिकुलर टॉपिक दैट इज द पार्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड टू एमएड सेमेस्टर 3 पेपर नंबर 9B यूनिट नंबर 4. यह टॉपिक यानी प्रकरण एमएड सेमेस्टर 3 के अंतर्गत 9B में यूनिट 4 में यानी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत यूनिट 4 में है. इंटर्नशिप अर्थात एक प्रशिक्षण का काल जिसमें कि छात्र यानी छात्र अध्यापकों के द्वारा विद्यालय में पढ़ाने का कार्यक्रम होता है. इन द सेंस कह सकते हैं कि इंटर्नशिप दैट मीन्स ए प्रोसेस वेयर स्टूडेंट टीचर स्पेशली टेक क्लास इन द स्कूल, दैट मीन्स इन ए स्कूल एंड दैट इज रिलेटेड टू द सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट. हम कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं व्यवस्थित तरीके से संचालित होती हैं और छात्र अध्यापक अपना प्रशिक्षण का काल कंप्लीट पूरा करते हैं और छात्र यानी स्टूडेंट चीज़ को अच्छी तरह से सीखते हैं, समझते हैं. एनसीटी रेगुलेशन की अगर बात की जाए तो 2014 रेगुलेशन के पूर्व में 20 दिन और फिर 40 दिन का शिक्षण अभ्यास का कार्यक्रम चलता था, प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग की इंटर्नशिप की. लेकिन 2014 रेगुलेशन में बीएड पाठ्यक्रम को 2 वर्ष का किया गया और पाठ्याभ्यास की प्रक्रिया को के साथ ऑब्जर्वेशन को भी जोड़ा गया और इसे टोटल 20 सप्ताह का पूरा किया गया, यानी 20 सप्ताह के लिए कंपलसरी रूप से किया गया. आप समझ सकते हैं कि इस 20 सप्ताह अगर जो 20 या 40 दिन के जो चलते थे, अगर उससे 20 वीक यानी 20 वीक का किया गया तो निश्चित ही यह कार्यक्रम अति महत्वपूर्ण या कह सकते हैं कि बीएड कार्यक्रम के लिए ये बैकबोन है, यानी शिक्षा के लिए या शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षक खासकर तैयार होते हैं उसके लिए उनका प्रशिक्षण करना एक रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन के रूप में काम करती है. दैट मीन्स इफ एनी टीचर दैट मीन्स taught in the classroom, it is necessary to train or that means engaged in practice of teaching as per the new regulation, that is 20 week. That means it is most important and vital and also play a significant role in the development of teacher education. That means अध्यापक शिक्षा के लिए यह कार्यक्रम उसके विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है. अब साथ ही साथ वो विद्यालय के अनुभव को भी जान पाते हैं और समझ पाते हैं. तो मैं अब इसके विद्यालय के अनुभव का मूल्यांकन और इंटर्नशिप कार्यक्रम का भी मूल्यांकन के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ. Welcome to 27th video lecture class MAD semester 3 paper 9B secondary and higher secondary education. Evaluation of school experience or evaluation of internship program. Internship program in teacher education is of great significance because it ensures the professional preparation of prospective teachers. It provides them a practical opportunity to develop the true understanding of the teaching profession and future prospect of working condition in that profession. Next point, school internship has been an integral part of teacher education program from the inception itself. Student teachers get the opportunity to apply the techniques, methods, approaches and theories in actual classroom situation during school internship. Now next point, National Council for Teacher Education NCTE revised the course structure of B.Ed and M.Ed program in India in the year 2014. As a result, the course duration of B.Ed program was extended to 2 years and also M.Ed program, that means extended to 2 years, and the internship of the M.Ed, that is 10 days in the classroom. Next point, school internship period
for the B.Ed student also was extended to 20 weeks, which previously ranged from 6 to 7 weeks. NCT also provided detailed guidelines for the school internship of B.Ed student in the year 2016. Roles and responsibility. Next point, roles and responsibilities of each and every partner in the teacher education program were clearly delineated. Two important players in the school internship program for the student teacher are the mentor teacher in the school and supervising teacher in the institute of the teacher education. Now, objective of internship program, practice of teaching. The objective of practice teaching exercises are as follows. Number one, to provide an opportunity to evaluating the student potentials as a teacher, suitability for the teaching profession. Second, to provide the future teachers with experience in school to overcome the problem of discipline and enable him her develop method of control. Next, to provide an opportunity to put theories into practice and develop deeper understanding of educational principles and their implication of learning. Number 4, to enable the student teachers effectively plan and prepare lessons. Number 5, to develop skills in the use of fundamental procedures, techniques and method of teaching. Number 6, to enable students acquire desirable characteristics, traits of a teacher and display appropriate behavior. Number 7, to develop desirable professions, interests, attitudes and ideas related to teaching profession. Number 8, to provide student teacher with opportunity to have teaching evaluation and to gain from constructive criticism. Next, to provide an opportunity for self evaluation and to discover one's strength and weakness. Number 10, to develop skill in future teacher related to teaching skill, fluent speaking, meaningful reading using the board and other teaching materials. Now, next, evaluation of school experience, student practice teaching. The purpose of all educational endeavor is to promote learning in pupils. The success of a student teacher presentation and of program is measured in terms of what has been learned and what changes this has brought about within the pupils. With regard to student practice teaching, there are thereafter three levels of evaluation. A. The student teacher evaluate the pupils. B. The student teaching is evaluated of the cooperating teacher. C. The student teacher's teaching is evaluated by the external supervisor from the participating institutions. Now, evaluation involves the process of making decision about the worth of an activity. There is perhaps no process more central to teaching than evaluation. Now, the process of evaluating teaching practice poses a number of problems. Number 1, what is to be assessed. Number 2, the frequency of assessment. Number 3, the exact weighting to attach to different activities and competencies. And number 4, the philosophical issues of whether effective teaching is at all quantifiable. Now, it must be pointed out teaching practice supervision is closely tied to evaluation. While supervision involves more than evaluation, it is through the effectiveness or otherwise of teaching. Now, the supervisor pronounces on the teaching practice supervision is closely tied to evaluation, while supervision involves more than evaluation. It is through the effectiveness of the student teacher by assessing a letter grade A, B, C, D as pass grade or F as failure grade. Now, the particular method given by Ogbodo in 2013. Now, ideally, the supervisor should visit the student teacher and observe him teach at least 2 times during a practice program before he could reasonably and within a measures of objectivity make a decision as to the effectiveness of his
टीचिंग। नाउ अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूं। स्कूल के अनुभव या इंटर्नशिप कार्यक्रम का मूल्यांकन। शिक्षक शिक्षा में यानी अध्यापक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम का बहुत महत्व है, क्योंकि यह भावी शिक्षकों की पेशेवर तैयारी सुनिश्चित करता है। यह उन्हें शिक्षण पेशे और काम करने की भावी संभावनाओं को सही समझ विकसित करना, उस पेशे में स्थितियों का एक व्यवहारिक अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय में अध्यापक यानी शिक्षक और शिक्षक शिक्षा अध्यापक शिक्षा संस्थान में पर्यवेक्षक शिक्षक छात्र शिक्षक के लिए स्कूल इंटर्नशिप कार्यक्रम में दो महत्वपूर्ण खिलाड़ी के संरक्षक रूप में है, यानी दो महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में है। स्कूल इंटर्नशिप यानी पाठ्य अभ्यास अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का एक अभिन्न हिस्सा है, जो कि शुरुआत से रही है। छात्र शिक्षक यानी अध्यापक शिक्षक स्कूल इंटर्नशिप के दौरान वास्तविक कक्षा की स्थिति में तकनीक, तरीके, दृष्टिकोण और सिद्धांतों को लागू करने का अवसर उन्हें मिलता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT ने वर्ष 2014 में भारत में B.Ed और M.Ed कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम संरचना को संशोधित किया। परिणाम स्वरूप B.Ed कार्यक्रम की पाठ्यक्रम अवधि को 2 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ M.Ed पाठ्यक्रम के कार्यक्रम को भी 2 वर्ष के लिए कर दिया गया। B.Ed के छात्रों के लिए नेक्स्ट पॉइंट, B.Ed के छात्रों के लिए स्कूल इंटर्नशिप की अवधि भी 20 सप्ताह तक बढ़ा दी गई थी, जो पहले 6 से 7 सप्ताह तक थी। NCT ने वर्ष 2016 में B.Ed छात्रों के स्कूल इंटर्नशिप के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए। प्रत्येक की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के प्रत्येक साथी को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया था। इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य यानी शिक्षण अभ्यास का उद्देश्य क्या है? शिक्षण अभ्यास का उद्देश्य इस प्रकार है। नंबर 1, एक शिक्षक के रूप में छात्रों की क्षमता के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करना और शिक्षण पेशे के लिए उपयुक्तता। नंबर 2, भविष्य के शिक्षकों को स्कूल में अनुभव प्रदान करने के लिए अनुशासन की समस्या और उसे नियंत्रित करने की विधि विकसित करना। सिद्धांतों को नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सिद्धांतों को व्यवहार में लाने और गहरा यानी मैंने कही कि डीपली विकास करने का अवसर प्रदान करना और शैक्षिक सिद्धांतों और उनके सीखने के निहितार्थ की समझ विकसित करना। नंबर 4, छात्र शिक्षकों को प्रभावी ढंग से योजना बनाने और पाठ्य तैयारी करने में सक्षम बनाना। नंबर 5, मौलिक प्रक्रियाओं, तकनीकों और विधि के उपयोग में कौशल विकसित करना शिक्षण का, जो कि अति महत्वपूर्ण है। नंबर 6, छात्रों को एक शिक्षक की वांछनीय विशेषताओं, लक्षणों को प्राप्त करने और सक्षम करने के लिए उचित व्यवहार प्रदर्शित करने की व्यवस्था करना। नंबर 7, वांछनीय पेशेवर विकसित करने के लिए रुचि, दृष्टिकोण और विचारों के समक्ष शिक्षण पेशा को ध्यान रखना या शिक्षण पेशा को विकसित करना। नंबर 8, शिक्षण मूल्यांकन और शिक्षण करने के अवसर के साथ साथ छात्र शिक्षक प्रदान रचनात्मक आलोचना और छात्र शिक्षक अपनी बातों को भी धीरे धीरे स्पष्ट कर सकते हैं और रचनात्मक आलोचनाओं में भाग भी ले सकते हैं। नंबर 9, स्व मूल्यांकन के लिए एक अवसर प्रदान करना और किसी की ताकत का पता लगाना और उसकी कमजोरी को जानना, ताकि उसकी समस्याओं का धीरे धीरे समाधान किया जा सके। और लास्ट में नंबर 10, धारा प्रवाह बोलने जैसे शिक्षण से संबंधित भविष्य के शिक्षकों में कौशल विकसित करने के लिए और बोर्ड, जैसा कि ब्लैक बोर्ड को हम जानते हैं, और अन्य शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हुए सार्थक पढ़ने पढ़ाने की तरीका और तकनीक को विकसित करना। स्कूल के अनुभव का मूल्यांकन, छात्र अभ्यास शिक्षण। सभी शैक्षिक प्रयासों का उद्देश्य विद्यार्थियों में शिक्षा को बढ़ावा देना है। एक छात्र शिक्षक की प्रस्तुति और कार्यक्रम की सफलता इस बात से मापी जाती है कि क्या सीखा गया और इसने विद्यार्थियों के भीतर क्या बदलाव लाए हैं। छात्र अभ्यास शिक्षण के संबंध में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके मूल्यांकन को 3 स्तर पर देखते हैं। नंबर 1, छात्र शिक्षक विद्यार्थियों का मूल्यांकन करता है। छात्र के शिक्षण का मूल्यांकन सहयोगी शिक्षक द्वारा किया जाता है। तीसरा, छात्र शिक्षक के शिक्षण का मूल्यांकन प्रतिभागी संस्थान के बाहरी परीक्षक द्वारा भी किया जाता है। मूल्यांकन, अब इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन में एक गतिविधि के मूल्य के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल है। उनके मूल्यांकन को पढ़ाने के लिए शायद अधिक केंद्रीय प्रक्रिया नहीं हो सकती, इसलिए ये प्रक्रिया को अपनाया गया है जिससे कि छात्र शिक्षक
विद्यालय में जाकर इस प्रक्रिया को अपनाएं और उनका मूल्यांकन स्वयं भी करें या उनके पीयर टीचर के द्वारा भी यानी सहयोगी शिक्षक के द्वारा भी मूल्यांकन हो। शिक्षण अभ्यास के मूल्यांकन की प्रक्रिया में कई समस्याएं भी। नंबर 1, मूल्यांकन क्या किया जाना है। नंबर 1, जिसका क्या स्पष्ट थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, स्पष्ट चीज़ों को जो है वह चर्चाएँ नहीं की जाती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्रक्रिया बढ़ रही है बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया गया है। मूल्यांकन की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी किस प्रकार की होगी। विभिन्न गतिविधियों और दक्षताओं को संलग्न करने के लिए सटीक भार होना चाहिए। दार्शनिक मुद्दे चाहे प्रभावी शिक्षण के हों सभी मात्रात्मक आधार पर हो, यानी कितनी क्वांटिटी किन किन चीज़ों की शामिल हो इस पर भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। पैराग्राफ चेंज। पर्यवेक्षक शिक्षण अभ्यास पर्यवेक्षण पर उच्चारित करता है जो मूल्यांकन के लिए निकटता से जुड़ा हुआ है, जबकि मूल्यांकन में मूल्यांकन से अधिक शामिल होता है। यह एक असफल ग्रेड के रूप में, पास ग्रेड या एफ के रूप में, पत्र ग्रेड ABCD के रूप में असाइन करके छात्र शिक्षक प्रभावशीलता के माध्यम से होता है, जो कि ओक बोर्डो 2013 के द्वारा यह प्रदर्शित किया गया था। सामान्य तौर पर कहें कि मूल्यांकन के अंतर्गत जितने भी छात्र शिक्षक शामिल होते हैं उनकी सफलता या असफलता का आकलन करने के लिए जो पर्यवेक्षक के द्वारा छात्रों को ABCD के रूप में ग्रेडिंग प्रदान की जाती है ताकि पता चल सके कि आपका लेवल स्तर क्या है। और वही जो कि इस में सफल नहीं हो पाते हैं उनके लिए F का भी प्रोविज़न रखा गया है, जिससे कि पता चलता है कि आप असफल हुए हैं। ये विचार जो है वो ओक बोर्डो के द्वारा 2013 में प्रदान किया गया था। लास्ट में आदर्श रूप से पर्यवेक्षक को छात्र शिक्षक के केंद्र का दौरा करना चाहिए और अभ्यास कार्यक्रम के दौरान उसे कम से कम 2 बार पढ़ाने से पहले और उसके बाद यथोचित रूप से निरीक्षण करना चाहिए और साथ ही साथ देखना चाहिए और समझना चाहिए और निष्पक्षता के साथ अपने शिक्षण की प्रभावशीलता के अनुसार निर्णय लेना चाहिए ताकि बायसनेस या पक्षपात न हो और सभी छात्रों को एक साथ बैठाकर या उन्हें अलग अलग भी फीडबैक दिया जा सकता है, उनकी बातों को बताया जा सकता है ताकि वो अपनी कमियों को दूर कर सकें। इस प्रकार से मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट किया, पूरा किया। अब मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।